Exercise 7.4, question number 1. Here, find the value of, question is, we are given that NC8 equal to NC2. NC8 equal to NC2 is given. Question is, find the value of NC2. NC2 की वैल्यू आपको निकालनी है. Find the value of NC2. So to find the value of this NC2, first we need to find the value of this N. So for that, this is given. So let's start with the given. We are given that NC8 equal to NC2. For the simplification of this, we discuss one formula, है ना. ये सब मैंने कल आपको दिखाया था कि NCR is nothing but the NC N minus R, है ना. इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे है, वो सब कल डिस्कस किया था. So from this formula we can write this NC2 as a NC8 as it is. Writing this NC2 को कैसे लिखेंगे, NCN minus 2. NCN minus 2. Clear from this formula? ये समझ में आ गया. So this one NC8 equal to NCN minus 2. और दूसरा भी एक फॉर्मूला ऐसे स्टडी किया था कि if NCA equal to NCB, and then we can write A is equal to B. So applying formula here, it's a NC8 equal to NCN minus 2, and therefore we can write 8 equal to N minus 2, and therefore we can say N equal to 10. Clear? Using two formulas, NCR equal to NCN minus R, and if NCA equal to NCB, we can say N equal to B. Done? So now our value is N equal to 10. Question is find NC2. So now to find the NC2, put N equal to 10. So we have to find 10C2, and 10C2 formula, NCR का formula भी study किया है, सबको आता है. What is NCR? कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिखूँ. NCR equal to N factorial upon N minus R factorial into R factorial combination. So this 10C2 is nothing but the, क्या होगा, 10 factorial upon 10 minus 2 factorial 8 factorial into 2 factorial. Understood? 10 को रिड्यूस करेंगे 8 तक, 8 पर ब्रेक लगाएंगे. सो 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पर ब्रेक, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल था और 2 फैक्टोरियल होता है 2. 8 8 कट, 2 5 10. सो आवर आंसर, वैल्यू ऑफ दिस NC2, है ना, वैल्यू ऑफ दिस NC2 which is nothing but the 10C2, and that is equal to 9 5 45 is the answer. Clear students? समझ में आ गया सबको? ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. कहीं पर भी समझ में नहीं आए वहां पर आपको अनम्यूट करना है और डाउट सोल्व करना है, ठीक है. सेकेंड सम, हियर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n. अगेन आपको n फाइंड करना है. टू केसेस आर देयर, दैट मींस टू पार्ट्स आर देयर. फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ वी आर गिवन दैट 2NC3, है ना. फ्रेश पेज पर करते हैं, ये कम जगह पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 2 इधर करते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालना है. फॉर दैट टू केसेस आर देयर. फर्स्ट केस, (2NC3), we are given that 2NC3 ratio NC2, and that is equal to 12:1. This is given. Solve this equation in terms of combination. Find the value of n. इसका मतलब ये हुआ. Done. So 2NC3, इसको सोल्व करने के लिए आपको NCR का फॉर्मूला आना चाहिए. आपके रेफरेंस के लिए फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ. NCR
What is NCR? NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial होता है. So here instead of n we are having 2n, instead of r we are having 3. Here NC2 is there, ratio है तो numerator by denominator में आएगा. So first I am applying the formula for this 2nc3. तो 2nc3 के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? It will be 2n factorial, है ना, n factorial. तो यहाँ पर 2n factorial अपॉन 2n minus 3 factorial, क्योंकि यहाँ पर होता है n minus r factorial. तो दिस वन इज 2n minus 3 factorial into r factorial. So this will be 3 factorial. डन. रेशियो है डिवीजन में, तो इसको डिवीजन में लिखने की जगह पर मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखूं तो ये जो मुझे न्यूमरेटर में लिखना है वो मुझे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा. सो NC2 पर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो होगा n माइनस 2 फैक्टोरियल into 2 factorial, and this is equal to 12 upon 1. Is that clear? Yes or no? Just applying the formula. अभी यहाँ पर रिडक्शन करना है. देखो यहाँ पर 2n है और यहाँ पर n-2 है और यहाँ पर 2n-3 और यहाँ पर n है. तो ये दोनों के बीच में आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो और यहाँ पर भी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो. डन. तो 2n को रिड्यूस करेंगे 2n-3 तक और n को रिड्यूस करेंगे n-2 तक. तो 2n को रिड्यूस करना है 2n-3 तक, है ना, फैक्टोरियल है. तो 2n को लिखेंगे 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 फैक्टोरियल और नीचे आ गया 2n minus 3 फैक्टोरियल, 2n minus 3 फैक्टोरियल. ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. डन. क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पर n-2 है, यहाँ पर n है, तो n-2 को एज इट इज रखेंगे और 2 फैक्टोरियल को एज इट इज. यहाँ पर n फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे n-1, n-2 पर ब्रेक, एंड दैट इज इक्वल टू 12 upon 1. क्लियर? समझ में आया? तो ये देखो 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल कट होगा, ये n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कट होगा. डन. तो बाकी क्या बचेगा? 2n-1, 2n-2. तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और ये 2 यहाँ पर आएगा. डन. तो ये होगा 2 2 जा 4n, 2 2 जा 4n. This will be 2n-1, this will be n-1. क्लियर? और आप ये देखो मल्टीप्लिकेशन में एक n भी कट हो रहा है, तो n भी कट हो गया, तो n भी कट हो गया और यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ 3. मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कुछ बचा, ये 1 upon n-1 बचा यहाँ पर. डन. एंड दैट इज इक्वल टू 12-1 और यहाँ पर देखो तो n-1 भी कट हो गया, तो सब कट हो गया. यहाँ पर बचा सिर्फ 4 इंटू 2n-1 और ये 3 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा तो होगा 12 3 जा 36 और ये 4 डिवीजन में जाएगा अगेन, तो ये होगा 2n-1 इक्वल टू 9 एंड देयरफॉर सिंप्लीफाई करो. सो 2n इक्वल टू 10 एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग n इक्वल टू 5. n इक्वल टू 5 वो हमें फाइंड करना था. क्लियर स्टूडेंट्स? है ना. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. अभी सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू निकालनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ वी आर गिवन एज 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 11c1. अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रह गया तो यहाँ पर आपका सोल्व हो जाएगा. कैसे करना है? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? NCR का. NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल.
है ना, कल वाला लेक्चर अच्छी तरह से स्टडी करके आए होंगे ना, तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आपको शांति से बैठना है और देखते रहना है। सो एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना। लास्ट समय मैंने एक स्टेप बीच में नहीं लिखा था, अभी वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपको शायद समझ में आए। तो 2nc3 रेशियो nc3 ऐसे होता है, nc3 एंड दिस इज इक्वल टू 11/1, है ना। ये रेशियो का मतलब ये हुआ। अभी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो 2nc3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n की जगह पर हमारे पास 2n है, तो ये होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसके नीचे ये वाला है nc3। तो nc3 के लिए क्या होगा, nc3 के लिए n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 11/1। आया समझ में? ये स्टेप नहीं लिखा था। अभी आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, दिस विल बी 2n फैक्टोरियल अपॉन दिस वन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये होगा n फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, डन, एंड दिस इज इक्वल टू 11/1। अभी आ गया समझ में? अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 3 फैक्टोरियल तो कट हो गया, n-3 है तो इसको रिड्यूस करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये 2n-3 है तो इसको रिड्यूस करके ये सिंप्लीफाई करेंगे, डन। तो 2n को रिड्यूस करना है 2n-3 तक, और n को रिड्यूस करना है n-3 तक, और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2n को रिड्यूस करें, सो दैट विल बी 2n 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल, है ना। 2n फैक्टोरियल उसको रिड्यूस करके 2n-3 तक ब्रेक कर दी, अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे कहाँ तक, n-3 तक। सो दिस इज n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, और ऊपर ये n-3 फैक्टोरियल था, n-3 फैक्टोरियल था, और इक्वल टू 11/1। देयरफॉर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन देखो, कट क्या होगा, ये 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, और यहाँ से 2n-2 में से 2 कॉमन ले लें तो ये n-1 होगा, और ये n-1 यहाँ पर कट होगा, और ये n भी कट होगा, डन। तो क्या बचा बाकी अभी, हियर दिस विल बी 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4, दिस वन इज 2n-1, न्यूमरेटर में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में यहाँ पर ओनली n-2 n-2, and this is equal to 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, we are getting the answer। so 4 2 जा 8n minus 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11n minus 22, n को सामने ले जाओ, माइनस 22 को इस साइड लाओ, therefore 22 minus 4 18 इक्वल टू 11n minus 8, 11n minus 8n कितना होगा, 3n, and therefore n equal to 6 is the answer। क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? अभी समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम्स आर देयर। इसके अंदर आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन इज हाउ मेनी chords कैन बी drawn थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, है ना। ये हमने एग्जांपल में किया था, वहां पर मैंने, है ना, 7 पॉइंट लिया था, यहाँ पर 21 पॉइंट है। सो हाउ मेनी chords कैन बी drawn थ्रू द 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल।
सो ऑन सर्कल टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 21 पॉइंट है। सर्कल के ऊपर टोटल 21 पॉइंट्स है, उसमें से आपको कोड ड्रॉ करनी है। तो आपको क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन किसका करना होगा? किसी 2 पॉइंट का। तो टोटल 21 पॉइंट में से आपको 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं, आपके कोड्स होंगे। यस और नो? डन। सो नंबर ऑफ कोड्स, डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल कोड्स, नंबर ऑफ कोड्स ऑन अ सर्कल, number of chords on circle are nothing but the 21C2 selection of 2 points from the different 21 points. So 21C2 will be your answer. और इसका सिंप्लीफिकेशन भी हमें ही करना होगा. So it's a 21 factorial upon 21 minus 2, 19 factorial into 2 factorial. तो ये क्या होगा? 21 को 19 तक रिड्यूस करके ब्रेक लगाओ. So 21 into 20 into 19 factorial upon 19 factorial, और 2 factorial होता है 2. 19 factorial कट, 2 10 20 is cut. तो हमारा आंसर आएगा total number of possible codes that we can withdraw by using 2 points of 21 points on a circle is 210. Number of codes are 210 is the answer. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, है ना? सर्कल पर कोड ड्रॉ करने के लिए आपको किसी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है. डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? क्वेश्चन समझो क्या दिया है आपको. नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन सिलेक्ट द टीम. कौन सी टीम? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. तो आपके पास टोटल 5 बॉयज है. देखो टोटल 5 बॉयज में से आपको 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, एंड आपको 4 गर्ल्स में से आपको सिलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स. आपको टीम बनानी है. सो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 9. 9 में से आपको 6 को सिलेक्ट करना है, लेकिन क्या करना है? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है. तो आप खुद सोचो कि आपको 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है, तो 3 बॉयज का सिलेक्शन आप कहां से करेंगे? 3 बॉयज का सिलेक्शन आप बॉयज में से ही करेंगे ना, कि आपको किसी गर्ल्स को बॉयज कंसिडर करके बॉयज में कंसिडर करेंगे? 3 बॉयज का सिलेक्शन आप सिर्फ बॉयज में से करेंगे, और 3 गर्ल्स का सिलेक्शन आप टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में से करेंगे. डन. और हमें टीम बनानी है. दैट मींस वी हैव टू फॉर्म टीम बाय यूजिंग बॉयज एंड गर्ल्स, है ना? दोनों को कंसिडर करना है. सो नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सिलेक्ट द टीम. So number of ways of selection, we can say number of ways of selection. कोई बताएगा मुझे क्या होगा? किसी को समझ में आया होता तो? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, 5 में से 3 बॉय को सिलेक्ट करेंगे. यस. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, दिस इज द वैल्यू ऑफ r. 5 में से 3 बॉय को सिलेक्ट करेंगे, तो इट्स 5c3. एंड गर्ल्स को भी सिलेक्ट करनी है, तो 4 में से 3 गर्ल को सिलेक्ट करेंगे. So n equal to 4 गर्ल्स में से r equal to 3 गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे. So it's a 4c3. और इसका सिंप्लीफिकेशन हम ही करेंगे और हमारा आंसर आएगा. क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल 5 minus 3, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू दिस वन इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो इसका आंसर क्या होगा? 5 into 4 into 3 factorial, 3 3 cut, 5 into 4, 2 2 are 4, so this will be 10. 10 into 4 into 3, 4 into 3 factorial, 3 3 cut 4, so this will be 4. You are getting answer as a 40. आपका आंसर आएगा 40. क्लियर? समझ में आ गया? तो आपको सिलेक्शन करना था बॉयज एंड गर्ल्स का. तो बॉयज को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 5 बॉयज थे, उसमें से 3 सिलेक्ट करने थे, और गर्ल्स का सिलेक्शन करने के लिए आपके पास टोटल 4 गर्ल्स थी, उसमें से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना था. तो ये हमारा आंसर है ना. दोनों को सिलेक्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन की. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. रीड द क्वेश्चन. आराम से क्वेश्चन रीड करो. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम द 6 रेड बॉल्स. देखो
क्या सिलेक्ट करना है आपको? आपको टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम दी 6 रेड बॉल्स। सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है? वी आर हैविंग रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 6, व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल हमारे पास टोटल है 5 व्हाइट बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल कितने हैं? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स। सो 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। इसमें से आपको टोटल फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। आपको सिलेक्ट करने हैं 9 बॉल्स और उसमें भी कंडीशन, क्या कंडीशन? इफ ये हमारी कंडीशन है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। आपको जो सिलेक्शन करना है ना, आपको रेड कलर, व्हाइट कलर और ब्लू कलर तीनों कलर के बॉल को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन करने में कंडीशन ये है कि तीनों कलर के 3-3 बॉल्स आपको सिलेक्ट करने हैं, है ना। 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, है ना। 5 व्हाइट बॉल में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं और 5 ब्लू बॉल्स में से आपको 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं और आपको टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करने हैं। आ गया लॉजिक समझ में? टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करने हैं। 9 बॉल सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कंडीशन है कि जो 3 कलर के बॉल है ना, तीनों कलर के 3-3 बॉल आपको सिलेक्ट करने हैं। तो हमें समझ में आ गया कि अगर हम रेड कलर का सिलेक्शन करें तो 6 में से 3 सिलेक्ट करना है, व्हाइट बॉल के सिलेक्शन में हमें 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं और ब्लू बॉल के सिलेक्शन में 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। डन। सो नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सिलेक्ट द बॉल। सो नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन, टोटल हमें 9 बॉल सिलेक्ट करने हैं। दैट मीन्स हमें रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल एंड ब्लू बॉल तीनों सिलेक्ट करने हैं, तभी जाके हमें 9 बॉल सिलेक्ट कर पाएंगे। एन मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा? ये होगा, ये एन की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है। तो इट्स 6c3 मल्टीप्लाई बाय 5c3, है ना। 5 में से 3 व्हाइट बॉल और 5 में से 3 ब्लू बॉल, so it's a 5c3. This is total number of possible, what we can say, total number of possible of selection. Done. 6c3 into 5c3 into 5c3. Simplification करें, करना ही पड़ेगा। So 6c3 is nothing but the 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial. फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। 5c3 होगा 5 factorial upon 5 minus 3 factorial 2 factorial into 3 factorial into 5c3 again 5 factorial 5 minus 3 2 factorial into 3 factorial. डन। 6 फैक्टोरियल को रिड्यूस करें 3 तक तो ये होगा 6 5 4 3 फैक्टोरियल और एक 3 फैक्टोरियल एज इट इज, ये 3 फैक्टोरियल होगा 3 2 1 into 6 और ये 5 फैक्टोरियल 5 4 3 फैक्टोरियल 2 into 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। सिमिलरली हियर 5 4 3 फैक्टोरियल, दिस वन इज 2 into 3 फैक्टोरियल। कटिंग करो तो ये 3 फैक्टोरियल कट, 3 2 6 कट, 3 फैक्टोरियल कट, 2 2 4, 3 फैक्टोरियल 2 2 4। क्या आंसर आया? 5 4 20, ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में, है ना। 5 4 20, ये 5 2 10 और ये 5 2 10 अगेन। डन। सो 10 10 100, 20 total number of possible ways are 2000 by which you can select 9 balls from these different colors of balls. Clear? पक्का सबको समझ में आ रहा है? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को फिल करना है ना। क्वेश्चन को सिर्फ रीड नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना है, उसको फिल करना है, तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब इसका रट्टा लगा देंगे, है ना, बाय हार्ट कर लेंगे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ जाएगा, लेकिन कुछ और लॉजिक का क्वेश्चन आ गया तो गए काम से। तो आपको क्वेश्चन फिल करना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको आप अच्छी तरह से फिल कर सकते हो, ट्राई करो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड 52, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, लेकिन कंडीशन इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एज इन ईच कॉम्बिनेशन, है ना। आपको 5 कार्ड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने हैं।
आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, है ना, n इक्वल टू 52 कार्ड्स है। इसमें से आपको r इक्वल टू 5 कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं। 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं तो डायरेक्ट 52C5 नहीं कर देना है। इसके अंदर आपको कंडीशन है कि जो 5 कार्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, 5 कार्ड जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर एक आपका एस होना ही चाहिए। तो 1 एस प्लस 4 अदर कार्ड्स आपको सिलेक्ट करना है। ये आ गया समझ में आपको क्या सिलेक्ट करना है? आपके टोटल 52 कार्ड में से 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 5 कार्ड वाला जो कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर कंडीशन दी है ना। देखो, इफ देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, आप जो 5 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर एक एस होना चाहिए और बाकी के 4 कार्ड आप अदर सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी कोई मुझे बताएगा कि सिलेक्शन क्या होने वाला है? खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो। नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन लगाया किसी ने? लॉजिक क्या होने वाला है? देखो, मुझे एक एस और 4 अदर कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो देखो, मुझे एक एस सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? एस को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने एस होते हैं कार्ड में? 4 एस होते हैं ना। वेरी गुड। किसी को पता ही नहीं होगा कि प्लेइंग कार्ड्स होते कैसे, दिखते कैसे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो टोटल 4 एस होते हैं, उसमें से एक एस सिलेक्ट करना है। तो एक एक एज सिलेक्ट कर दिया हमने, टोटल 4 एज आर देयर, उसमें से एक सिलेक्ट कर दिया। अभी बाकी के 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो बाकी के 4 कार्ड सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा? 52 जो टोटल कार्ड थे ना उसमें से 4 एज थे और बाकी के अदर कार्ड्स थे कितने? 48 अदर कार्ड्स। तो टोटल 52 कार्ड्स को हमने डिवाइड कर दिया कि 4 एज और 48 अदर कार्ड्स। तो 4 में से आपको एक एज सिलेक्ट करना था और बाकी के जो 48 अदर कार्ड है ना उसमें से आपको 4 अदर कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो ये वाला जो सिलेक्शन है वो क्या आएगा? 48 C4 आएगा। ये समझ में आया? पक्का? तो इसका सिलेक्शन बोलो क्या होगा? 4C1 इट्स अ 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, वो तो 1 ही होता है। 48C3, सो 48 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल एंड ये होगा 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन होगा, क्या होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 48 को 48 मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दो। 46, 45 और ये 44 को ब्रेक लगाएंगे क्योंकि नीचे 44 है और 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1। कटिंग होगा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 2 2 जा 4। बस इतना मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या होगा मल्टीप्लीकेशन? बोलो फटाफट। कौन सा मल्टीप्लीकेशन? 4 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। ये मल्टीप्लीकेशन करके मुझे आंसर दो। दिस आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ दिस गिवन कार्ड। मोबाइल में कर लूँ मैं? 7 7 8320 done. So these are the total number of possible ways by which you can select 5 cards combination from the given deck of playing card. Clear students? अभी देखो आईपीएल मैच चल रहा है हमारा, है ना। तो राजस्थान रॉयल अच्छा नहीं खेला शायद, मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हम सिलेक्शन करेंगे क्रिकेट मैच का। देखो, इन हाउ मेनी वेज, देखो क्रिकेट मैच सिलेक्शन है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11? क्रिकेट टीम के अंदर टोटल 11 प्लेयर होते हैं। सो वी हैव टू सिलेक्ट टोटल 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर आपको सिलेक्ट करने हैं आपकी टीम के लिए। यू हैव टू सिलेक्ट 11 प्लेयर्स फ्रॉम दी 17 प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास 17 प्लेयर है। तो 17
C11 ऐसे करके डायरेक्ट 11 सिलेक्ट नहीं कर रहे, इसके अंदर कंडीशन है, सारे के सारे आप 11 के 11 आप जो बैट्समैन सिलेक्ट कर देंगे तो बाद में बॉलिंग कौन करेगा, और सारे के सारे 11 आपने जो बॉलर सिलेक्ट कर दिए तो बैटिंग कौन करेगा, तो कंडीशन तो होगी ना कि इतने बॉलर तो कम से कम होने चाहिए। तो कंडीशन दी है देखो, इन हाउ मेनी वेज can one select a cricket team of 11 players from the 17 players in which only 5 players can bowl, है ना। ये जो टोटल 17 प्लेयर है ना, वो 17 प्लेयर में से हमारे पास 5 प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ बॉलिंग ही कर सकते हैं, उनको बैटिंग नहीं आती है। सो 5 players can only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। देखो 11 प्लेयर्स की टीम जो सिलेक्ट करनी है ना, उसके अंदर क्या इंक्लूड करना है, if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers, आपको टीम में exactly 4 bowlers इंक्लूड करने ही है। आप जो 11 प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आप 11 बैट्समैन सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, उसमें आपको एग्जैक्टली 4 बॉलर रखना है। और ये जो हमारे पास टोटल 17 प्लेयर है ना, उसके अंदर भी 12 प्लस 5 प्लेयर ऐसे हैं कि जो सिर्फ बॉलिंग ही कर पा रहे हैं ना, 5 सिर्फ बॉलर है, उनको बैटिंग नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है। तो अभी शायद किसी को पता चल गया होगा कि कैसे सिलेक्शन होने वाला है, बताएगा कोई मुझे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, है ना। अगेन रिपीट करता हूँ, वी आर हैविंग टोटल 17 प्लेयर्स, टोटल 17 प्लेयर हमारे आईपीएल के ऑप्शन में है ना, उसको हमें बाय करना है, परचेज करना है। कंडीशन ये है कि 17 में से हमें 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है, और 11 प्लेयर जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, है ना, उसके अंदर आपको 4 बॉलर को सिलेक्ट करना है। तो 4 बॉलर सिलेक्ट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, ये 17 प्लेयर के पास जाएंगे, और ये 17 प्लेयर्स में से भी आपके पास सिर्फ 5 ही बॉलर ऐसे हैं कि जो बॉलिंग कर सकते हैं। तो आपको 4 बॉलर सिलेक्ट करने हैं, एग्जैक्टली 4, है ना, वर्ड दिया है एग्जैक्टली 4, मतलब आपको 4 से कम या फिर 4 से ज्यादा बॉलर सिलेक्ट नहीं करने। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जो टोटल 5 बॉलर है उसमें से 4 सिलेक्ट करेंगे, यस और नो। आपकी 11 प्लेयर की टीम में 4 बॉलर होने चाहिए, सिलेक्शन के लिए आपके पास टोटल 5 बॉलर है, तो 5 में से 4 बॉलर सिलेक्ट करेंगे, तो इट्स अ 5C4। बॉलर सिलेक्ट कर दिए, आपके 4 प्लेयर आ गए। अभी आपके पास टीम को कंप्लीट करने के लिए और कितने प्लेयर चाहिए, 7 प्लेयर चाहिए, है ना। 4 को सिलेक्ट कर लिया, आपको कंसिडर करना है 11 प्लेयर्स, तो 4 बॉलर सिलेक्ट कर दिया। अभी आपको 7 और प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। 7 और प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, बॉलर तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बॉलर के लिए कंडीशन है कि आप 4 ही बॉलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी के 7 प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, बाकी के जो 12 प्लेयर है ना वहां पर जाएंगे, उसमें से आप बाकी के 7 प्लेयर सिलेक्ट करेंगे। तो 7 + 4 आपकी 11 प्लेयर की टीम हो जाएगी, और वो सिलेक्शन होगा 17 में से। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। सो 5C4 होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 12C7 होगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सिंप्लीफिकेशन होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। दिस वन इज 12 को रिड्यूस करेंगे 7 तक, 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 120 होता है, कई बार यूज किया। तो 7 फैक्टोरियल 7 7 फैक्टोरियल कट, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट, 12 10 जा 120 कट। तो क्या आंसर आएगा, 5 इंटू ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 8 इंटू 7, 11 इंटू 9 इंटू 8, इसका मल्टीप्लीकेशन दो मुझे फटाफट, वो हमारा आंसर आएगा। ये 792 और इसका डबल करके हाफ कर दो, डबल करके हाफ करेंगे तो क्या होगा, क्या आंसर है। हाँ 3960, है ना। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। चलो फटाफट 3 मिनट और 3 से हम कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 5 black 6 red balls
A bag contains 5 black, 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black balls and 3 red balls are selected. क्या सिलेक्ट करना है? 2 black balls and 3 red balls are selected. इसमें क्या हुआ? आगे समझ में कैसे करना है? Bag contains 5 black balls and 6 red balls. उसमें से आपको 2 black ball और 3 red ball सिलेक्ट करने हैं. So number of ways of selection. Number of ways of selection. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या करेंगे? 5C2 करेंगे, 5 में से 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करेंगे और 6 में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे. डन. सो इट्स 5C2 into 6C3. क्लियर? अरे भाई माइक मत म्यूट करके बैठो. इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू दिस वन इज 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. डन. तो ये होगा 5 4 जा 20/2 10. This will be 6 into 5 into 3 factorial. 6 into 5 into 3. This will be 20, and this is equal to 200. Done. Very good. चलो लास्ट क्वेश्चन 9th हो जाएगा. 30 seconds. In how many ways can a student choose a program of 5 courses? 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every students. है ना? टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं? 9. फ्रॉम दिस 9 कोर्स स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट टोटल 5 कोर्सेज. 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं और 5 कोर्सेज में 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो कंपलसरी है. कंपलसरी मतलब क्या? आपके पास कोई सिलेक्शन के लिए चॉइस नहीं है, तो बाकी के आपको सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करने हैं. इज इट क्लियर? तो 9 में से 2 कंपलसरी है, तो 2 कंपलसरी आपको सिलेक्ट कर ही लेने हैं. बाकी के जो 7 बचे उसमें से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं. क्लियर? So number of ways by which student can select the syllabus, that is students can select a course, that is 7C3. 7C3 एक ही तरीका है, क्योंकि 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं तो 2 कोर्सेज कंपलसरी है. तो 9 में से 2 कोर्सेज कंपलसरी, तो सिलेक्शन करने के लिए आपके पास बाकी बचे 7. आपको 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, 2 कंपलसरी आपको लेने ही है, तो आपके पास ऑप्शन में क्या बचा सिलेक्ट करने के लिए? 3 बचा. दैट मीन्स ये